Hello, my dear students. In this video, I'll explain the some questions based on parabola. As you know, in the earlier video, I had told already about all types of parabolas like right-sided parabola, left-sided parabola, this upward parabola and downward parabola. Here some questions are there. First question, for example, if you have y square is equal to 8x, and this is the question, and you have to find the focus, vertex, directrix, axis, means all type these things are you have to find. So first of all, focus, then directrix, then equation of axis. Before finding any term like focus, directrix, equation of axis, you must compare the given equation with the standard equation of parabola. अगर तुम्हें आता होगा कि ये what is the nature of this type of parabola, so this is the right sided parabola. And you know the equation of right sided parabola is y square is equal to 4ax. You will let this equation 1 and equation 2. Now you can see the same type of equations is there and only the difference in 4a. What is 4a? As I explained earlier, the 4a is the length of latus rectum. तो 4a अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो 4a is equal to 8 because the coefficient of x here 4a and coefficient of x is 8 here. So 4a is equal to 8. So a is equal to 2. After finding a, you can find focus because focus of this type of parabola जो राइट साइडेड पैराबोला होता है उसका फोकस a,0 होता है. So as you know, because this is the right sided parabola, now you can write in place of a 2, so 2,0 is the focus. Similarly, the directrix, equation of directrix of this type of parabola x plus a is equal to 0. This is the equation of directrix. मतलब a की जगह पे 2 रखना है तो x plus 2 is equal to 0. This is the equation. Equation of axis of this type of parabola. ये जो राइट साइडेड पैराबोला है इसकी इक्वेशन होती है, एक्सिस की इक्वेशन होती है y is equal to 0. So this is the equation of axis. Y is equal to 0. So everything you can find by using the y square is equal to 4ax. And if asking about the latus rectum, so latus rectum directly you can write because 4a is latus rectum, so 4a is equal to 8. This 8 is the latus rectum. तो ये इसका जो latus rectum हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गई, इस तरीके से निकाले जाते हैं. One more question. If you have a focus (2, 3) and equation of directrix (4x minus 3y plus 2 is equal to 0) and find the equation of parabola. अगर हमारे पास में फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे? दैट इज यू कैन यूज द इक्वेशन बाय डेफिनेशन. दैट इज बाय डेफिनेशन PS is equal to PM. This is the equation of parabola. But what is P? Already I told. P is a point
on the parabola, that is x comma y, the distance from the fixed point, that is focus, must be equal to the distance from the line, that is directrix. मतलब PS is equal to PM. तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे let P be a point on parabola such that PS is equal to PM. So find the distance of the point P to the focus and distance from point P to the line. So use the distance formula for finding PS. So PS is equal to under root x minus 2 whole square y minus 3 whole square. And what is PM? PM is the perpendicular distance formula from point P x comma y to the line directrix. So this is the formula 4x minus 3y plus 2 whole upon under root a square plus b square means 4a square plus 3 square. Do you know the equation of the perpendicular distance from a point to the line? जैसे एक ये लाइन है ax plus by plus c is equal to 0 and this is the point P x1 comma y1. Can you find the distance from P to this line? This was in a straight line. जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ चुके हो उसमें था ये. तो ये डिस्टेंस जो d होगी वो किसके इक्वल होगी? d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c इन मॉडुलस डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला एंड द सेम फॉर्मूला आई हैड यूज्ड हियर. Now simplify, so you will get 4x minus 3y plus 2 in modulus divided by 4 square 16 plus 9 that is 25. You can write directly, that is 5. After finding PS and PM, use the equation. या लिख सकते हैं according to question using equation PS is equal to PM. In place of PS, use this x minus 2 whole square y minus 3 whole square is equal to 4x minus 3y plus 2 upon 5. But don't leave here because this is not the simplest form. You have to write in the simplest form. How to write? मतलब कोई भी आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखें. जैसे कि x माइनस 2 होल स्क्वायर है, अब y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज एन अंडर रूट. सो टेक द स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट तभी हटेगा और ये मॉडुलस भी तभी हटेगा. मॉडुलस का मतलब कि यू आर गेटिंग द प्लस एंड माइनस बोथ वैल्यूज इफ यू कैंसिल दिस मॉडुलस साइन. तो इसको अगर हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे. इससे बढ़िया है कि इसको स्क्वायर कर दें. तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स यू कैन राइट हियर, यू विल गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 एंड देन सिंप्लीफाई मोर. तो इसको अगर हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 4x minus 6y plus 4 and plus 9 means 13. Directly I am writing here. After simplifying this one you will get this value. Similarly here 16x square plus 9y square plus 4 minus 24 xy minus 12y
and plus 16x this much divided by 25। तो ये जो डिवाइडेड बाई 25 को है हम इधर मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं इससे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now simplify means multiply this one 25 into x square, 25 into y square, 25 into this and minus 16x means all the term you take in the one side, that is in the left hand side. So 25x square minus 16x square, that is 9x square. 25y square minus 9y square, that is 16y square. 25 into माइनस 4x, उसके पहले हम ये माइनस 24xy क्योंकि कहीं नहीं है तो यू कैन राइट एज प्लस 24xy। 25 इंटू 4 दैट इज 100x, माइनस में 100x है और ये प्लस 16x है, तो इफ यू टेक इन दिस तो माइनस माइनस मतलब माइनस 116x माइनस 150y एंड प्लस 12, तो कितना हो जाएगा माइनस 150y एंड प्लस 12 मीन सब्ट्रैक्ट, तो 38 माइनस 138y एंड देन 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 325 एंड माइनस 4, तो 321 plus 321 is equal to 0. This is the simplest form of the answer. हमेशा जो भी आंसर लिखे simplest form में लिखे। Now the second one more question I want to tell you that sometimes कभी-कभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देते पैराबोला का और तुमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज फाइंड द वर्टेक्स फोकस, फाइंड द वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस एवरीथिंग लैटिस रेक्टम पैराबोला। ये जो पैराबोला है ये दिस इज गिवन, दिस इज द पैराबोला, इसको निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा 6y है इट इज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। बट हाउ टू चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? फॉर दिस जो भी क्वाड्रेटिक है, इसमें किसमें क्वाड्रेटिक है? y में क्वाड्रेटिक है, मतलब जो y स्क्वायर और y टर्म है उसको एक साइड में ले और जो अदर टर्म्स है डिजिट भी उसे राइट हैंड साइड में ले, तो यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना है? फाइंड वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स लैटिस रेक्टम, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड। Thereafter you have to change in the perfect square। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए किसी भी तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करें, क्योंकि इक्वेशन हमारी जो भी आएगी वो इस तरीके से कुछ आएगी प्लस माइनस 4ax। क्यों? बिकॉज क्वाड्रेटिक इन y, अगर ये क्वाड्रेटिक इन x होता तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay आता। तो इन दिस केस यू हैव टू चेंज इन दिस फॉर्म, तो इसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। बट हाउ टू चेंज? सबसे पहले चेंज करने के लिए y स्क्वायर का जो भी है वो सिंगल y लिखेंगे, दिस साइन यू विल टेक हियर, देन डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, हाफ लिखेंगे इसका हाफ, तो दैट इज द 3 एंड देन टेक द स्क्वायर। अब अगर इसको एक्सपैंड करें, फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सपैंड क्या आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y, यानी हमें y स्क्वायर प्लस 6y तो मिल गया, लेकिन प्लस 9 एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी माइनस 9 कर दें इज इक्वल टू 2x माइनस 5। मतलब ये अगर हम इसको अब एक्सपेंड करें तो ये तुम्हारा y स्क्वायर प्लस 6y ही आएगा। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x है कहीं पे,
या एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, इन बोथ द केस हाउ विल यू चेंज इनटू द परफेक्ट स्क्वायर? टेक x, मतलब इसका स्क्वायर छोड़ गए, टेक दिस साइन दैट इज प्लस, टेक द हाफ ऑफ दिस कोफिशिएंट दैट इज 3/2 विदाउट x। इसी तरह इसमें भी करें, x द साइन इज माइनस द हाफ ऑफ 3 दैट इज 3/2, देन टेक द स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर कर दें। अब देखिए कि इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 एंड प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स दैट विल कम 3x। तो जब ये आ रहा है तो हमारे पास में ये क्वांटिटी तो आ गई, बट 9/4 इज एक्स्ट्रा क्वांटिटी, तो दैट यू विल सब्ट्रैक्ट 9/4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया। सिमिलरली हियर इफ यू टेक हियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x, मतलब ये पार्ट तो आएगा ही, अगेन प्लस 9/4 इज द एक्स्ट्रा क्वांटिटी, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट 9/4। हमारा बताने का मतलब यह है कि यहां पे चाहे प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इसे सब्ट्रैक्ट ही करना, 3/2 का स्क्वायर, और यहां पे भी जैसे 3 का स्क्वायर 9 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये एक मेथड है टू चेंज इनटू द परफेक्ट स्क्वायर। देन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज यू हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन एग्जैक्टली इन दिस फॉर्म। सो y plus 3 whole square minus 9 take that side, so 2x minus 5 plus 9 that is 2x plus 4। y plus 3 whole square जब इतना आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड इज चेंज इनटू द होल स्क्वायर, बट द राइट हैंड साइड, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4a है, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, लेकिन इसके साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है, यहां पे प्लस 4 है या माइनस कुछ भी हो, तो यू हैव टू राइट दिस x विदाउट एनी डिजिट, मतलब इसके साथ से 1 होनी चाहिए, नॉट अदर देन 1। तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 यू विल गेट। अब x के साथ यहां पे कुछ नहीं है, इसके पहले आ गया, बट अभी भी ये एग्जैक्टली इसमें चेंज नहीं हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए अब हमें लेट करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज इन स्मॉल x एंड स्मॉल y, नाउ यू हैव टू लेट इन कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, चेंजिंग द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अगर हम लेट कर ले, कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 3 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2, एंड देन यू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा, y square is equal to 2x. Now, can you tell that the same type of equations you are getting here? बिल्कुल सेम आ गई ना, कि जो y square is equal to 4ax के फॉर्म में, मतलब हमारा जो मेन एम था कि जो इक्वेशन लंबी सी दी गई थी उसको इस फॉर्म में चेंज करना। एंड नाउ यू नो दैट दिस इक्वेशन इज ऑफ राइट साइडेड पैराबोला। ये राइट साइडेड पैराबोला की इक्वेशन है। जब राइट साइडेड पैराबोला पता चल गया तो यू नो द व्हाट इज द फोकस ऑफ राइट साइडेड पैराबोला, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ राइट साइडेड, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए जो पहले पढ़ चुके हो। बट अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हमको इसमें फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स से। वर्टेक्स अगर हम देखा जाए तो एक कॉलम ऐसे बना लेते हैं। इस केस में वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा। भाई ये राइट साइडेड पैराबोला है और हमने बताया था कि राइट साइडेड पैराबोला का वर्टेक्स यहां होता है एंड दिस इज द ओरिजिन, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वर्टेक्स इज 0,0, बट दिस 0 रिप्रेजेंट द कैपिटल X एंड दिस 0 रिप्रेजेंट द कैपिटल Y, क्योंकि X, Y कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। स्मॉल x स्मॉल y नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हमको अब इस कैपिटल X कैपिटल Y में जाना है, क्योंकि अभी पहले बताया ना कि दिस इज चेंज इनटू द फ्रॉम ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो ये कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है और ये कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 है। तो एग्जैक्टली दिस इज नॉट द वर्टेक्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो स्मॉल x स्मॉल y में आएगा वो वर्टेक्स होगा। तो अब इसको हमें स्मॉल x स्मॉल y में हाउ टू चेंज, अभी हमने लेट किया था कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 3 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इसकी जगह पे x प्लस 2 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे y प्लस 3 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -3। सो द वर्टेक्स इज ऑफ द क्वेश्चन -2, -3. This is the answer, vertex. How to find the focus? फोकस निकालने के लिए हमें, क्योंकि इस पार्ट का फोकस a,0 होगा इन दिस पार्ट गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट साइडेड पैराबोला का फोकस a,0 होता है। अगर हम स्मॉल a means this small a represent the x value of x and 0 represent the y, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट हाउ विल यू फाइंड द a? अभी x तो x प्लस 2 लिख देंगे, y को y प्लस 3, बट व्हाट इज a? a is you will get from here, क्योंकि इफ यू कंपेयर दिस by y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x का कोफिशिएंट 4a होता है, तो 4a इज इक्वल टू हियर 2, तो a is equal to 1/2. Now you put here x plus 2 is equal to 1/2. So x is equal to 1/2 minus 2 or x is equal to minus 3/2. And y is equal to y plus 3 is equal to 0. So y is equal to -3. So the focus is -3/2, -3. This is the focus. Similarly, the directrix you can take from, इस इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? कैपिटल X प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. तो बाय दिस वे यू कैन गेट ऑल द थिंग्स बाय कंपेरिजन, और इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज करके तब निकाला जा सकता है. ओके, सो यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑफ, जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं उनके क्वेश्चंस को इसी तरह से निकाले जाएंगे. तो कीप ऑन वॉचिंग, यू विल गेट सम मोर वीडियोस बेस्ड ऑन द कोनिक सेक्शन. माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इलिप्स, तो इसको देखते रहें. तो इलिप्स पे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हमारा इलिप्स पे होगा. थैंक यू.